Okay, so good evening, everyone. Welcome back. Good evening, sir. Is everyone there in the meeting? Yes, 7 people here. Yes. So, how many questions were you able to solve? Yes, Aishi, Avishu, Riya. 4. Huh? What, sir? Sir, 3. 3 questions. Oh. So, more questions are remaining, kya? 4 and 5. Yes, sir. Okay. बाकी लोग Aishi, Avishu. The 2 questions only. 2 and 5. Yes, Aishi, Avishu. First, third, first and second. Aishi? सर आई डिड 2 Didn't do means? मतलब 2 ही हुआ है Any एक of नहीं them? हुआ अच्छा. ठीक है, let us discuss some questions. Sir, third question. We'll discuss one by one. Okay, sir. So, okay. So before beginning, I want to tell that these are very conceptual questions. These require a lot of thought. Okay. So it might happen कि आप लोगों को नहीं आए questions. So there's nothing to fear about it. ठीक है. So the purpose of these problems is not to test you. This is not a test. This is a classwork problem. And through these problems, I want to teach you many concepts, many small things, which are foundational for the electric field dipole. जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं. So the classwork problems are not meant to demotivate you. It might happen कि आपको एक ही क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है. Because when I was also solving this, I also could not solve many of the questions. Almost half of the questions I was not able to solve. So डरने का बात नहीं. And second thing is, more important than getting the right answer here is having the proper approach. So I am more concerned with now how you are solving the problem. Is the way of approaching the problem proper? Is the method proper? Are the laws which you are applying, are they proper? Okay. If that is okay, then there might be some problem in the calculation, or while solving you might be stuck somewhere. So you should not be more worried about that. Okay. So the classroom problems are meant to build your concepts and give you confidence in the concept of the topic. ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं है पहली बार. Okay. So now let us discuss this one by one. Sure. So first question. So this is a figure of a typical electric quadrupole. Okay. So here we have a point P. Is everyone there with me? Right. पता चला Yes, sir. Yes, sir. वो कितना Aishi, Avishu? सब लोग है ना? यस सर यस सर Yes, sir. Okay, good. So now observe carefully. So in the question, the figure is given something like this. ठीक है. So figure ऐसे दिया हुआ. And this charge is minus 2q. Okay. So they have given us the term electric quadrupole. Okay. So we have studied what is a dipole, but here is a quadrupole.
So dipole has 2 charges. So quadrupole will have 4 charges. Quad means 4. So this figure can be redrawn like this, the way which I'm doing it. अच्छा फिगर सही किया क्या? इस प्लस प्लस ठीक है. So the figure can be rerun like this. Now they have asked us to find out electric field at this point T. Okay. So you have to find out electric field at this point T. This distance is given as R. And these two distances are given as U. Okay. So now we know the electric field due to a dipole along its axis. We had derived this in last class. So first of all, let me show the dipole moments of both the dipoles. So here the dipole moment will be from negative to positive. And for the second, the dipole moment will be from here negative to positive. Let me also name them as let me also name them as P1 and P2. So these are the dipoles of the other two dipoles. Okay. So now electric field due to this first dipole, electric field due to the first dipole at point P. Okay. What will be the direction? Electric field due to first dipole at point P. Let this be first dipole. Let this be second dipole. Yes. Can anyone tell? Electric field at point P due to first dipole. At least direction बता दो. क्या direction होगा? Downwards or upwards? Toward P. Downwards. Yes, sir. Are you sure? इसका डायपोल हो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा. This is electric field due to first dipole. And electric field due to second dipole will be downwards. ठीक है. So now net electric field can be written as E1 plus E2. So its magnitude will be, you can say E1 minus E2. What will be E1 here? This will be 2P by 4 pi epsilon naught into this can be written as R minus 2p by
4 pi epsilon naught r plus a by 2 whole square. We can write it like this. So this can be written as 2p by 4 pi epsilon naught इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ऐसे होगा. So now remaining you can solve. So in this question we applied electric field due to a dipole at an axial point. Okay. So is this clear to everyone? अच्छे समझ में आ गया? एकदम अच्छे से? Yes. Aishi, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it's a simple application of electric field due to a dipole at an axial point. Sir, then what is the use of that given dipole? That is not. What is the use of given? That given dipole in the question. In the question it is given. Capital Q equals to 2Q into A square. This is called the quadruple moment of given charge distribution. So when you solve this, you'll get the answer in terms of capital P. This is P is equals to 2Q है. यहाँ पे 2Q into A होगा, यहाँ पे एक और A है. So that will be 2Q into A square. So you'll get the answer in terms of capital P. Okay. Okay, Amiksha. Yes, sir. Okay. Sir, then what will be the answer? Final answer. Yes, sir. Final answer is P capital Q by 4 pi epsilon naught. Okay. This turns out to be the answer. Okay. Now second question. Let us see the second question also. Here you have to find out electric field again due to quadruple, but this is at a point P, which is lying around the perpendicular bisector. Okay. So I had given you this as the homework also. Electric field at a perpendicular bisector. So here again we have a quadruple. We have 4 charges. And we have another point P here. So what are the charges here? It's minus Q plus Q plus Q minus Q. And from here the distance is also given. The resistance is given as R. Basically, you have to find out the electric field at point P. This first dipole, second dipole. Now, what is the electric field at point P due to first dipole?
This also is given as A. This is the side of the square. So electric field at point P due to first dipole. So we know that dipole moment will be like this. This is P1. This is P2. So what is the direction of E1? Will it be up or down? Electric field due to first dipole at point P. Will it be upwards or downwards? ये ना होमवर्क दिया था तो आपने किया होगा तो आपको पता होगा. Would you like to try, Amisha? What will be the direction of E1, electric field due to first dipole on this point? Will it be upwards or downwards, or right or left? Yes, Ria? ये बताना चाहेगा? ठीक है. Sir, the dipole on the P will be upward. In dipole moment is downward. Electric field कहाँ होगा? Upward or downward? Oh, yeah, sorry. Electric field on upward direction. Yeah. So electric field here will be upward. Similarly, electric field due to second dipole will be downwards. So this is E1, this is E2. So the net electric field again can be written as E1 minus E2, or you can write it as E2 minus E1 downwards. Now, what is the value of E2? कोई बता सकता है? Oishi? Can you tell? कल आप लोगों ने डिराइव किया था ना परसों. 1 by 4 epsilon naught Q1 by R square. Q1? Q by R square. That is the electric field due to point charge. I'm asking electric field due to dipole. अरे भाई उस दिन किए थे ना. On Monday we did this, right? First we derived this for question number 1 का formula, and second was the derivation of this electric field due to dipole at an axial point. Yeah. अभी याद है? Is anyone able to see something? Green color का दिख रहा है? Yes, sir. Yeah. So अभी याद है? Sir, Sir, 2p by 4 pi epsilon naught r cube.
2p by 4p epsilon r cube. That is for axial. Sir, 1 by 4 epsilon not p by r square plus a square whole 3 by 2. हाँ, correct. यही this is what I was looking for. So basically E2 will be 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube. तो यहाँ पे हो जाएगा this will be r plus a by 2 whole cube. जो वो वाला फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन में क्या आता है? यही बता रहे थे. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्सियल पॉइंट पे होता है 2p by 4 pi epsilon naught r cube. And electric field at perpendicular bisector. This is p by 4 pi epsilon naught into r cube. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, सेम डायरेक्शन एज p, एंड इसमें डायरेक्शन अपोजिट है. And also the smaller is what? There is a distance from the center. So हमारा point P है suppose plus Q minus Q. So there is the distance smaller. Distance from the center of the dipole toward the point. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. Now इस क्वेश्चन में ये स्मॉलर की जगह होगा कैपिटल R प्लस a by 2, क्योंकि स्क्वायर का हाफ डिस्टेंस a by 2 है. This will be minus 1 by 4 pi epsilon naught p by r minus a by 2. ठीक है, क्लियर है सबको? वो लास्ट वाले फॉर्म में तो हमने पूरा एक गलती कर दिया. यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर कैसे क्यूब हो गया? ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करना है. फाइनल आंसर सही है, ये हमने डेरिवेशन गलत किया. Should be cube here. Okay. So now solving this, we'll get the answer. इसका आंसर क्या आता है? इसका आता है 6 a by सब लोग समझ में आ गया एकदम अच्छे से? यस, अजय, मुकिता, अविंशु, वैशी. Yes, sir. Yes, sir. आवाज से तो लग नहीं रहा है. Yes, sir. समझ में आ गया? ओके, ठीक है. So these problems are not very like क्या बोलते हैं, बहुत टफ नहीं है.
बट जनरली हमको आदत नहीं है इतना सोचने का, तो बहुत सोचना पड़ता है ना, क्या डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, क्या डायरेक्शन होगा, इसे सोचने का आदत नहीं है हमारे ब्रेन को। बट हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, सो स्लोली स्लोली यू हैव टू डेवलप दिस, क्या बोलते हैं, हिडन पावर, और वो प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबको एकदम से क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं किसी में? At least you should be able to understand what is the formula we are applying and कैसे अप्लाई सर करते वो No, a sir. by 2 मतलब क्यों यूज हो रहा है? मतलब आप उधर r प्लस और r माइनस, मतलब प्लस माइनस ठीक है, लेकिन वो a by 2 क्यों हो रहा है? स्क्वायर का साइड ए है ना? सर 2a है तो नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ना वो 2a दिया है। स्क्वायर का साइड 2a है। ओके, अगर ये साइड 2a है तो ये होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। I thought it was 2a, ठीक है, क्लियर है? ठीक है ओके, सब लोग क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. So let us go ahead. Question number 3. Question number 3. Electric field at the center of the square is plus q. This is minus q. This is plus 2. Sir, Yeah, बोलिए अभिषेक। sir, in the previous question, the final answer will be same. नहीं, सेम नहीं है, फाइनल आंसर दिस। हाँ मतलब वही रहेगा ना, A लेने के बाद भी। क्या क्या? मतलब after taking A also, the answer will be same. अच्छा वैसा बोल रहे हैं। That too you have to calculate. ठीक है सर। नहीं सेम नहीं रहेगा, अलग होगा। नहीं, जो मैंने फाइनल आंसर लिखा है वो सही है। ठीक है सर। I have calculated. Okay. So they have asked us in this question what is the electric field at the center. ये तो बहुत इजी, इसमें क्या करना है? This is the center. ठीक है। So क्या आंसर है? So 7.2 into 10 की power 4 Newton per coulomb. 7.2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Any other answer? So 7.2 root 2 Newton per coulomb. 7.2 into So 1. Root 2. 7.2 into root 2. Or divided So by 1.02 into 10 to the power 5 joules. जूल। जूल कहाँ से आ गया? थर्ड का क्या जूल कहाँ से आ गया? न्यूटन पर कूलम होगा। Okay, any other answers? ठीक है, let us start. yes sir, Newton. Any other answers? Oishi और कौन है? हमेशा तो बता दिया। आपका कुछ आंसर है क्या? No, sir. आंसर नहीं है। ठीक है, let us try to solve this. So this is first dipole, this is second dipole, and this is the point along the axis perpendicular bisector के along. So इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ये होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। दिस इज पी, P1 मान लो इसको P2 मान लो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 विल बी डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 विल बी अपवर्ड्स, है ना? सो E net will be E2 minus E1
upwards. Solving this, we get 1 by 4 pi epsilon naught. E2 ऊपर होगा, this will be P कितना हो गया था? 2q into 2a by ये डिस्टेंस कितना होगा? a by 2. a by 2 cube minus 1 by 4 pi epsilon naught q into 2a by a by 2. सबने ऐसे किया था? Yes, you solve it like this only. Yes, sir. Okay. बाकी लोग Amisha? No, sir. How did you solve that? So by resolving the resultant अच्छा. Okay. Amisha, and आपने then कैसे किया? calculating E net. Okay. अजय आपने कैसे किया था? Yes, Ajay. Oh. हाँ सर. आपने कैसे किया था? Do you do it like this only? हाँ सर, 1 मिनट सर, रफ में किया था थोड़ा, 1 मिनट. ठीक है. सर मेथड सही है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर वो ऐसे किया था सर, द फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय EQ इक्वल्स टू K Q by R square equals to 2KQ by A square, R square equals to A square by 2. फिर सर वो E total equals to E cos minus 45i plus sin minus 45. ऐसा हो गया. Got it. ये मेथड सही है कि गलत है? हाँ सर. I'm asking everyone. The method which I have done on the board, is this correct or wrong? थोड़े शांत हो गए. So solving this, you get answer as 2.88 into 10 raised to 5 Newton per coulomb upwards. ऐसा आंसर आता है. लेकिन एक्चुअल जो आंसर है वो तो ये है 1.017 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. This is the correct answer. So 7.2 रूट 2 को भी मल्टीप्लाई करने से तो 1.017 के आसपास आता है. क्लियर है क्या? सर मेरा लेकिन हाँ, तो सर. 1.021 ऐसे आ रहा था सर. ठीक है, उतना चलता है ना. That much is acceptable. ठीक है. So there is the correct answer. तो आप लोगों का सही है, बट ये वाला आंसर गलत आ गया. Sir, why? Yes. तो ऐसे क्यों हो गया? अच्छा, जो मेरा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू P बाय 4 pi epsilon naught R क्यूब. इसमें कुछ assumption होता है क्या हमारा? Is there an assumption here? A very very small. Yes. So the assumption is this R is greater than A. इस केस में है क्या ऐसे? No. जो हमारा डिस्टेंस है No, sir. सेंटर पे, ये तो नहीं, ये तो A by 2 ही है और दोनों का डायपोल के बीच में डिस्टेंस A है. तो ऐसा तो नहीं है. A by 2 and A are very much comparable, right? So that is why this formula is not valid here. We cannot use this directly. इसलिए आंसर गलत है.
ठीक है. So here you can just solve using the normal electrostatic method. चार्ज से कर सकते हैं minus q plus q. This is minus 2q plus q plus 2q. So now we can solve, है ना. बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो ये प्लस q और ये प्लस 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड ये माइनस q और ये माइनस q की वजह से होगा नेट इधर की तरफ. So net electric field will be E1 root 2. So this is, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना. 1/4πε0 q by ये जो डिस्टेंस होगा, this will be how much? a by root 2. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं. So finally get the answer as 1.07 into 1.017 into 10⁵ Newton per Coulomb. ओके, चलो क्लियर एकदम अच्छे से. सर आप जो Yes, sir. पहला वाला एक के मतलब वो तो इससे सेम नहीं है तो. हाँ, अलग आंसर है वही तो. नहीं मतलब ये वाला भी सही है. ये वाला भी सही है मतलब. ये जो लास्ट में जो किया है मतलब e√2 मतलब जो रिजल्टेंट लेके किया हुआ है वो वाला सही है ना. ये e2 माइनस e1 जो है ये तो अभी समझा है आपको. E2 माइनस E1 वाला मेथड इज रॉन्ग बिकॉज जो हमारा अजम्पशन रहता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला में, हाँ. दिस इज वैलिड ओनली व्हेन दिस r इज ग्रेटर देन a. बट यहाँ पे हमारा नहीं है ना वैसे. r तो a/2 है. इट इज वेरी मच कंपेरेबल टू द डायपोल्स लेंथ. ठीक है. ओके, सबको क्लियर है हमेशा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. तो काबलो का भी समटाइम्स व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स आप लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं, सर में कुछ फील होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ तो बहुत प्रेशर आ रहा है. हमको भी होता था व्हेन यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. हमको लगता था कि अपने इतना टफ प्रॉब्लम्स है और क्या लगता था, हाँ कितना सोचना पड़ रहा है इसमें. तो वही आप लोगों को प्रैक्टिस दे रहे हैं अभी. यू हैव टू थिंक अ लॉट व्हाइल डूइंग गुड प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो सब लोगों को पता है ना दैट इफ यू कीप सम मेटल लाइक आयरन, इफ यू जस्ट कीप द आयरन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट विल गेट रस्टेड. उसको जंग लगता है. तो जंग लगता है तो ऑब्वियसली उसका क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है. सिमिलरली हम लोग भी इतने सालों से हमारा ब्रेन अच्छे से यूज नहीं कर रहे और वो ठीक है, हम लोग ये सब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. दैट इज हमारे दिमाग में जंग लगा हुआ है. जब हम लोग सोचते हैं इसको बहुत, वी ट्राई टू सॉल्व द सच प्रॉब्लम्स, तब वो जंग धीरे धीरे निकलता है. फिर आपका भी माइंड बहुत फास्ट हो जाएगा. ठीक है. एक साल बाद व्हेन यू सी दिस क्वेश्चंस आफ्टर 1 ईयर यू विल सी कि ओ दिस सो इजी, इतना जल्दी हो जाएगा. अभी आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है. ठीक है. सो ऐसा होता है. ठीक है. सो नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस आर देयर. क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ कैन यू ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस. आप लोगों ने सिर्फ थर्ड तक ही किया था, तो आप लोग फर्स्ट ट्राई करो ऐसे क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस. यस, सब लोग ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट 5 तक करता है. क्या हो गया हम लोग? अच्छा, वीडियो ऑन करो 2 मिनट के लिए. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर मूड. 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करो. क्या विषय का मूड तो ठीक लग रहा है. बाकी लोग जल्दी जल्दी करो.
मुकिता आयुषी। रिया का मूड ठीक है, थोड़े उदास लग रहे हैं। आयुषी तो टेंशन है लग रहा है। ठीक है, अजय बोल रहे अच्छा मूड में। हमेशा का मूड कैसा है? पता नहीं। ओके, सो आई थिंक यू कैन डू मोर क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 या 6 तक करते हैं अभी। ठीक है, लेट अस पुश ऑन। तो यू कैन टेक मोर हाफ एन आवर, यू ट्राई दिस 2 क्वेश्चंस एंड देन वील डिस्कस फर्दर। ठीक है, Okay, ठीक है, sir. ओके फॉर एवरीवन? रिया, आयुषी, Yes, अविंशु? sir. यस, आयुषी, अविंशु? Yes, sir. ओके, अविशा आपके लिए ठीक है? Okay, good. So let us move on. So try the remaining questions. Question number 4, 5 and 6 भी कर सकते हैं अगर 6 or 7 तक. Try to solve more questions till 7 o'clock, and then we'll again come back for more discussion. ठीक है. So all the best. I'll just keep the meeting on. So कुछ भी doubt है तो आप बीच में पूछ सकते हैं. I'm here only. Okay. Okay everyone. एक फाइनली बोल दो. ओके सर। Yes, sir. Okay, sir. Okay, good. चलो. So till 7, try the remaining questions. Till 7 p.m. 7 5 कर लो थोड़ा. Okay, sir. 7 5. Actually, before starting to solve these questions, आप लोग you can take a break of 5 minutes. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो फर्स्ट, बिकॉज आप कंटिन्यूसली स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं ना, तो आपका भी थोड़ा आग दर्द कर सकते हैं. 5 मिनट का ब्रेक लेके देन स्टार्ट करो. यू कैन टेक लिटिल वाटर ऑन योर फेस, थोड़ा पानी पी सकते हैं, थोड़ा टहल के आ सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट. ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है? तो आयुषी, हमेशा अविंशु, मुकिता, Yes, sir. जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते जाओ, तभी तो आई कैन मूव फॉरवर्ड. नहीं तो हमको दिखता है ब्लैक स्क्रीन है, कुछ नाम लिखा हुआ है, पता नहीं लोगों को क्या लग रहा है. ओके, Yes, sir. यू कैन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस टेकिंग अ ब्रेक. चलो.
Sir,
रिया को तो आ रहा है, बाकी लोगों को हमेशा अविंशु ठीक है. So let us discuss the questions. Let me see the questions. Okay, question number 4. सब लोग मूड में है ना डिस्कस करने के? कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है हमको. एक बार सब लोग वीडियो ऑन करो 2 मिनट के लिए. Kiran, just turn on the videos 2 minutes. Okay. अविंशा ठीक है, अभिषेक भी ठीक है. रिया अजय ठीक है. तो कुछ रिस्पांस करो ना भाई, कुछ बोलते रहो बीच बीच में. अरे फिर से शांत हो गए सब. ऑनलाइन का यही प्रॉब्लम है कि हमको सर पता हम लोग नहीं. सब सुन रहे हैं. क्या क्या? सर सुन रहे हैं. हाँ सुन रहे हैं, बट बोलिए भी कुछ, तब समझ में आएगा ना. आई एम नॉट एबल टू सी, मतलब दिखता नहीं है तो कोई दिखता नहीं है. क्या एक्सप्रेशन है, क्या मूड है, दुख है, दुखी है कि खुश है. तो कविंग से तो खुश लग रहा है. तो बीच में बोलते रहो कुछ, सो दैट आई आल्सो गेट एनकरेजमेंट. ये तो अगली बार एक बार आप ट्राई करना क्लास देने के. ब्लैक स्क्रीन. सर करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अजय तो गुस्सा हो गया. नहीं सर. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली. आई एम टेलिंग कि यू जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड. बीच बीच में हम पूछते तो कुछ बोला करो. ओके सर. ठीक है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? ये चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपिटल प्लस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, एंड हियर इज द अनदर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू. ठीक है. सर यहाँ क्या दो अलग अलग केसेस है? हाँ, तो अलग अलग केसेस है. मतलब वो जो प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब कैपिटल प्लस क्यू माइनस क्यू, वो इंटरचेंज हो जाता है पोजीशन. हाँ 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 मतलब ऐसे दोनों केस है. हाँ, दोनों केस का. ओके. सो दिस द क्या बोलते हैं, दिस इज द डायपोल मोमेंट पी. इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की तरफ, इसलिए E. तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी नीचे की तरफ होगा. फोर्स भी also be downwards. ठीक है. अब सेकंड केस का आप लोग कर सकते हैं ना. सेकंड केस में उल्टा हो जाएगा. दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज प्लस स्मॉल क्यू. तो ये ऐसा है. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और फोर्स भी यही डायरेक्शन में. ठीक है. अब सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द डायपोल. तो डायपोल को कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? डायपोल पे ये डायरेक्शन में. और इस केस में डायपोल में रहेगा अपोजिट डायरेक्शन.
आप लोग पूछ सकते हैं क्यों ऐसा होता है, व्हाई डज दिस हैपन? सो दिस हैपेंस ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. So according to third law, the forces are always equal and opposite. So हमारा suppose first body है, second body. So this is force on 2 due to 1 and this is force on 1 due to 2. ठीक है, दोनों equal होने चाहिए. Similarly ये होगा force on 1 due to 2, force on 2 due to 1. ठीक है, तो B पार्ट नहीं पूछा था. अब C पार्ट में क्या पूछा था? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो कितना रहेगा मैग्नीट्यूड? इसलिए सेम ओनली F12 इक्वल्स टू F21, जो हमारा आंसर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया? 5 into 10 raised to minus 6. 5 into 10 raised to minus 6. ऐसा सबको समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? यस हमेशा कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट नहीं लग रहा. चलो क्लियर है तो. अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो हाँ बोलो. सर. हाँ सर. है ना? यस सर. जल्दी बोलो. ठीक है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं शायद. पढ़ना है ना? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. आपको क्या समझ में नहीं है इसमें बताइए. आपको ये समझ में है कि डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में होगा -2 प्लस, यस सर. देन उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में. ये समझ में आ गया? यस सर. अभी फोर्स क्या होता है? Q into E. ये फोर्स होता है राइट? यस सर. तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है. फोर्स इनटू Q into E, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, नाउ ये हमारा फर्स्ट बॉडी है डायपोल एंड सेकंड बॉडी इज चार्ज. तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन वी आर गेटिंग force on the charge F21 equals to Q into E, which is in downward direction. Now, by Newton's third law, we know that every action has an equal opposite reaction, and these two forces act on different bodies. तो अगर प्लस Q चार्ज पे नीचे फोर्स लग रहा है, तो डायपोल पे अपोजिट फोर्स लगना चाहिए ऊपर की डायरेक्शन. ऐसे ये समझ में आ गया? यस सर. बस तभी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. ठीक है, ओके सर. ओके. ऐसा पूछा करो, हमको भी अच्छा लगता है पूछते. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं बस आंसर बता देता हूँ. आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा, ए का होगा आंसर 5.7 into 10 raised to minus 11 न्यूटन पर कूलम, एंड बी होगा 2.087 into 10 raised to minus 7 न्यूटन पर कूलम. ये फोर्स लगेगा नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नीचे, ये होगा ऊपर. ठीक है, चलो आगे ऐसा आंसर पहले जिसने किया होगा उसको तो आना चाहिए. हाँ सर. सर सेकंड वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बता दीजिए. एक्सप्लेनेशन क्या है? बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल है, व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? दैट इज हीलियम He2 प्लस रहता है. So we know the mass of He2 plus, we know the charge on He2 plus, right?
पता है ना अजय? तो इसमें चार्ज रहेगा +2e और इसका मास रहेगा 2v। मास कितना रहेगा? 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4 टाइम्स इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये मास हमको पता है इसका। वी नो द चार्ज आल्सो। सो नीचे फोर्स लगेगा mg। So that is why electrostatic force should be in upward direction. And because electrostatic force ऊपर होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होना चाहिए। अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सर चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द प्रोटॉन होता है ना? ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन। हाँ वही तो लिखा है मैंने। चार्ज लिखा है ओके मैंने 2 into ओके e। सर। e is the क्या बोलते हैं? e का वैल्यू होता है 1.6 into 10⁻⁻। e is called elementary charge. Charge on electron is -e, charge on proton is +e। तो q equal to +2 होता है। ये क्लियर है अजय? वैसे क्लियर है? एकदम अच्छे समझ में आ गया? यस सर। ओके गुड। अजय आपको समझ में आ गया? अरे जो डाउट पूछते हैं वो तो आंसर करो भाई। समझ में आया? ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है? दीज आर इजी क्वेश्चन एक्चुअली। सर 10th का 10 तक पहुंच गए क्या? अरे 10 तो पहले 6 तो करते पहले। ठीक है, आई जस्ट टेल द आंसर्स ऑफ 6 का आंसर देखते हैं। ये होगा 1500 न्यूटन पर कूलम। V will be 2.4 into 10⁻16 Newton upwards. C will be 1.67। अच्छा कौन सा क्वेश्चन देखना आपको? शायद 6 तल होगा। ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। Is how much? This is 7.031 centimeters. V is 2.8125. C is 11.7%। यह हमारा आंसर है 6th। ओके आई थिंक हेवी हो रहा है आप लोगों के लिए। सर ये जो 7th का क्वेश्चन है उसमें जो प्रोजेक्टाइल एंगल है मतलब प्रोजेक्शन एंगल है वो क्या जरूरत है मतलब ये है ना क्वेश्चन में 45 डिग्री। हाँ वो 45 डिग्री का जरूरत है मतलब क्यों नहीं जरूरत है? नहीं उसके बिना भी तो हो रहा मतलब T इक्वल्स टू L/V भी वो वाला पुट करने से भी तो हो Vy Vx तो निकल जा रहा। नहीं थीटा चाहिए उसको। ओके आई थिंक आप लोग के थोड़ा हेवी हो रहा है। ठीक है तो हम लोग भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करना है क्या एटलीस्ट? हाँ सर। 10th का तो रियाविंग तो enthusiastic है। What about Oishi?
Sir, my classes are going on. ओह ठीक, तो वैसे आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, just one question we discuss. Sixth one. So 8th का वो लास्ट वाला पार्ट बता देंगे, where is the point located? इसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं. 8 का लास्ट करते हैं. 8 का लास्ट तो पहले कर चुके फिर भी. That is इसका तो 6th one. ठीक है. So I'll just give an hint. तो आपको समझ में जाएगा. 6 question. Electron moving with the speed of 5 into 10 to 8 centimeter per second, short parallel to electric field. तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, and suppose the electron is moving in this direction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? What should be the direction of electric field? Electric field, left or right? कुछ बोले रिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये हमेशा बताइए. Sir, towards the electron. Towards the electron, left or right? Sir, towards the velocity of the electron. हाँ तो लेफ्ट हो गया राइट हो गया बताना. Right. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा हमारा पीछे? So because the charge here is negative, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन. So this is Fe. ठीक है. So इसके बाद क्या करना है? How far will the electron travel before coming to rest? So what is the acceleration of this? This will be electrostatic force by mass. We can calculate the electrostatic force as Q into E by M. ठीक है. So the acceleration ऐसे होगा. इसको नेगेटिव ले सकते हैं because it is in opposite direction to the velocity. Initial velocity दिया आपको U 10⁶ मीटर पर सेकंड. जब फाइनल रेस्ट पे आएगा तो v = 0. इसका तो सॉल्व कर सकते हैं, तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है. So we can find out displacement v square minus u square equal to 2s. Similarly, we can find out time also. Or C part are interesting. If the electric field ends abruptly after 0.8 centimeter, what fraction of the kinetic energy will be lost? ये part हम थोड़ा बता सकते हैं. Fraction will be how much? This will be change in kinetic energy divided by initial kinetic energy. So this is kinetic energy, initial minus kinetic energy final, initial kinetic. This will be 1 minus v square by u square. ऐसे होगा. So you can write this as minus 2as by u square. ऐसे लिख सकते हैं इसको. Now we know acceleration, we know displacement, we know u also. तो इसको सॉल्व कर. ठीक, क्लियर सब लोग को? हाँ सर. अच्छे समझ में आ गया? वैशी, अभिषा? Yes, sir. Yes sir. ओके. तो जो सी पार्ट है उसको हम लोग इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी तो बहुत लंबा हो जाएगा. हमको मास सब्स्टिट्यूट करना होगा, वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दो का डिफरेंस लेना पड़ेगा. सो अगर आप इसको इंटेलिजेंटली करेंगे तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे तो ऐसे फॉर्म में आता है. दिस इज minus 2as by u square. तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है फर्स्ट पार्ट से, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट दिस फ्रैक्शन. ठीक है. ओके, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर.
rest we can discuss in the next class. तो आप बाकी क्वेश्चन भी सर क्वेश्चन 10 थोड़ा थोड़ा क्या देख लीजिए, देख लीजिए, देखा है हमने तो क्वेश्चन नंबर मतलब 10 उसका थोड़ा सॉल्यूशन बोल सकते हो तो। सॉल्यूशन बोलेंगे तो क्या रहेगा फिर? तो डिस्कशन करने का फायदा क्या? सॉल्यूशन तो एक स्टेप पे बता सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे। ट्राई करो, ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, इट्स वेरी 2-3 स्टेप का ही आंसर है, तो नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं। वेरी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। ठीक है अंशु, ठीक है तो यस रिस्पॉन्ड करो भाई, ठीक है। सो आई थिंक इन एंड द क्लास हियर, काफी लंबा हो गया, कितना हो गया 2.5 hours। 2.5 hours हमने we did almost 6 questions, but all 6 are very conceptual, पूरा दिमाग क्या, ठीक है, stretch हो गया। So you all can try the remaining questions and we can discuss them in the next class. Next class हमारा सैटरडे को होगा, ठीक है, ओके। सर वो जो इलास्टिसिटी और जो वेव्स का आपने क्वेश्चंस भेजा है उसका सॉल्यूशंस मतलब डिस्कशन लेट्स सी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ ये वीक में, ओके सर। ठीक है। आप डाउट्स भेज सकते हैं, मैं देखता हूँ उस डाउट्स को। आई विल ट्राई टू पोस्ट द सॉल्यूशंस, मे बी क्लास नहीं ले पाएंगे उसका अलग से, एटलीस्ट सॉल्यूशन पोस्ट कर देंगे, ओके। ओके सर। एनीथिंग एल्स, एनी ऑल्सो से कोई बोलना चाहता है कुछ? So thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, Sir. sir. Okay. So we'll meet in the next class. Sure. Thank you.